Healthy morning, students. Today we are going to start a new chapter of maths. This is chapter number 12, Heron's formula. Look, see, we have studied many formulas to find out area of triangle, like area of right angle triangle half into base into height, area of equilateral triangle root 3 by 4 into side square. Area of equilateral triangle root 3 by 4 into side square. Look, so in this chapter you have to study about the Heron's formula. Heron's formula. By applying Heron's formula, we will find out area of the triangle. Suppose this is a triangle. So side opposite to angle A is called small a. Side opposite to angle B is called small b, and here is small c. The formula to find out area of this triangle ABC. Area of this triangle ABC is under root S, S minus A, S minus B, S minus C. This is Heron's formula, where semi-perimeter S is equal to A plus B plus C divided by 2. So here S is called semi-perimeter. Perimeter of triangle is what? Sum of all sides, A plus B plus C. अब हम क्या कर रहे हैं? A plus B plus C को divide by 2 कर रहे हैं, यानी उसको half कर रहे हैं. So it is called semi-perimeter. Okay? So these all are the formulas. Go through it. Let us start to solve the sum. Here it is, question number first. Read the question. A traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle whose side is A. Find area of the signal board using Heron's formula. If its perimeter is 180 centimeter, what will be the area of the signal board? Okay. This is equilateral triangle, say ABC. See, there is a signboard in front of the school which is in the shape of equilateral triangle. And side of this equilateral triangle is A. Since it is equilateral triangle, तो all side will be equal. तो हर एक साइड का मेजरमेंट A है. अब इसका पेरीमीटर हमें दिया हुआ है perimeter of
triangle 180 centimeter. See, the formula of perimeter of triangle is what? Sum of all sides. Sum of all sides. Now perimeter is 180. Okay, sum of all sides. So let us add these all sides. A plus A plus A, A plus A plus A. Okay, so we have 180 equals to 3A. 180 divided by 3 is equal to A going to be 60 centimeter. Okay, 60 centimeter. So measurement of each side is 60 centimeter. This is 60, it is 60, it is 60. Now we'll apply Heron's formula. See, whenever we apply Heron's formula, we require A, B, C. A कौन सी साइड होती है? एंगल A के सामने वाली साइड, वो तो A ही है. तो यहां पर सारी साइड इक्वल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ए भी 60 सेंटीमीटर होगा, बी ऑल्सो 60 सेंटीमीटर एंड सी ऑल्सो 60 सेंटीमीटर. ओके, नाउ लेट अस फाइंड आउट एस, सेमी पेरीमीटर एस. फॉर्मूला इज ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2. सो ए इज 60 प्लस 60 प्लस 60 डिवाइड बाय 2, 180 divided by 2, so it will be 90. Okay, now let us apply formula of area. Area of triangle ABC according to Heron's formula, S minus A, S minus B, S minus C. Okay, so we will have S 90, S minus A, S is 90 minus A is 60, S 90 minus B 60, S 90 minus C is 60. Okay, so 90 into 60, 90 minus 60 30, 90 minus 60 30, 90 minus 60 30. Okay, look, we have to bring this all number in the form of square. ये सारे नंबर को स्क्वायर के फॉर्म में हमें लिखना है. क्या करना है? स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है. तो सिंपल है, हम ये दो 30 को स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि 2 टाइम 30 है, लेकिन 30 1 टाइम ही है. तो आप सोचो कि 90 30 को कोई नंबर से मल्टीप्लाई करने पर 90 आ सकता है. हाँ, आ सकता है. 33 जा, 90 के प्लेस में हम लिख सकते हैं 3 इंटू 30. ये 90 के प्लेस में मैंने लिखा हुआ है. ठीक है, बाकी ये 30 एज इट इज, ये 30 एज इट इज, ये 30 एज इट इज. ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? ये 3 एज इट इज, 32 टाइम है तो 30 का स्क्वायर, ये 32 टाइम है तो ये 30 का भी स्क्वायर. ठीक है, तो अभी देखो, हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि जब भी हम स्क्वायर रूट करते हैं तो ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है. यही 30 स्क्वायर है, बाहर आ जाएगा तो 30 हो जाएगा. ये 30 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो 30 हो जाएगा. अब ये 3 का तो स्क्वायर है ही नहीं, तो अंदर ही रहेगा. जो स्क्वायर के फॉर्म में वो बाहर आएगा, और जब बाहर आएगा तो स्क्वायर निकल जाएगा. 30 30 जा 900 रूट सेंटीमीटर. ये हमारा आंसर. ओके, सो हियर वी रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द ट्राइंगल. सो एरिया ऑफ गिवन triangle will be 900 root 3 centimeter. Okay, let me explain once again. See, there is a signboard beside the school where it is written school ahead.
and measurement of all sides of this equilateral triangle is A. Okay, and we have perimeter of triangle 180 सेंटीमीटर. तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का सारी साइड का मेजरमेंट A होगा. तो पेरीमीटर है उसके ऊपर से पहले हमें साइड फाइंड करनी पड़ेगी. ठीक है, और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ ऑल साइड. अब पेरीमीटर तो हमें दिया हुआ तो मैंने रख दिया. सम ऑफ ऑल साइड ये a प्लस a प्लस a a प्लस a प्लस a 3 हो गया. 3 शिफ्ट हुआ, a हो गया 60. ठीक है, अब हमें हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करना है. हेरोन्स फॉर्मूला में सारी साइड का मेजरमेंट चाहिए. ये साइड को a कहते हैं, ये साइड को b कहते हैं और ये साइड को c कहते हैं. जबकि यहाँ पर सारी साइड 60 सेंटीमीटर ही है, तो ए बी 60 होगा, बी भी 60 मीटर और सी भी. देखो ये ए बी सी ट्राइंगल की साइड्स है और यहाँ पर हर एक साइड का मेजरमेंट 60 ही है, तो ए बी सी 60 होगा. ये हेरोन्स फॉर्मूले हमें एस की जरूरत पड़ती है, तो हमने एस फाइंड किया, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2 फॉर्मूला अप्लाई करके. फिर ये फॉर्मूला अप्लाई किया, एस 90 एस माइनस है, एस 90 ए 60 एस 90 बी 60 एस 90 सी 60. फॉर्मूला अप्लाई करते गए, हमें ये मिला. देखो अभी रूट के अंदर आपको पेयर बनानी होती है दो दो नंबर की. ये तो ऑलरेडी 2 नंबर की पेयर है, यहाँ एक ही नंबर है, तो यहाँ से 30 के लिए और एक 30 चाहिए पेयर बनाने के लिए. तो आपको ये सोचना है कि 90 में से हम 30 कैसे ला सकते हैं. तो 90 की जगह पे हम 30 3 लिख सकते हैं. बाकी ये 3 टाइम 30 एज इट इज, 3 एज इट इज, 2 टाइम 30 स्क्वायर, 2 टाइम 30 स्क्वायर. तो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाते तो स्क्वायर निकल जाता है. 3 के ऊपर स्क्वायर नहीं है तो अंदर ही रहेगा. ये हमारा आंसर. ओके, गो थ्रू इट. Let us solve next one. Here it is. Look, second number. Read the question. A triangular side wall of a flyover has been used for advertisement. The side of the walls are 122 meter, 22 meter and 120 meter. The advertisement yield an earning of rupees 5,000 per meter square per year. A company hire one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? फ्लाईओवर आपको मालूम है, ठीक है, ब्रिज. अब फ्लाईओवर है, उसके ऊपर एक ट्राइंगल के शेप में एडवर्टाइजमेंट है. ट्राइंगल के शेप में एक एडवर्टाइजमेंट की स्पेस है. ठीक है, अब ये ट्राइंगल के मेजरमेंट हमें दिए 122, 22 और 120. ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी साइड को ले सकते हैं, कुछ भी. तो मैं सपोज इसको ए को 122 मीटर लेता हूं, बी 22 मीटर एंड सी 120 मीटर. ठीक है, ए बी सी और कुछ नहीं है, ट्राइंगल की साइड से जो मैंने ली हुई है. हमारे पास मेजर 122, 120 और 22 है, तो मैंने ट्राइंगल की साइड से ए को 122 लिया, बी 22, सी 120. तो ये मत देखना कि एबीसी कहां से आया, ये ट्राइंगल की साइड है. ठीक है, जो हम सिंबलाइज कर सकते हैं फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए. अब यहां पर हमें एडवर्टाइजिंग लगाना है और उसका कॉस्ट फाइंड करना है. तो हमें पहले मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल. सो टू फाइंड आउट एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल वी विल अप्लाई हेरोन्स फॉर्मूला. So to apply Heron's formula, first we required S, the formula for which is a plus b plus c divided by 2, a 122
Okay, B 22 and C 120 divided by 2. If I add this all, I will get 4 6 264 divided by 2. The semi perimeter S is going to be 132 meter. Okay, let us apply Heron's formula. Area of triangle according to Heron's formula, S minus A, S minus B, S minus C. Okay, substitute. S is 132, S 132 minus A 122, S 132 minus B 22, S 132 minus C 120. We will have 132 into 132 minus 122, 10. 132 minus 22, 110. 132 minus 20, 12. Okay. Now look, in previous sum though we were having two numbers, or third number we have converted in the form of square, but here we don't have any pair of number. तो ये कंडीशन में क्या करेंगे स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए? विल डू फैक्टराइजेशन. What we'll do? Factorization. We'll find out factor of all these numbers. If I find out factor of all these numbers, like factors of 132, देखो 2 6 are 12, 2 6 are 12, 2 33s are 3 11s are 11 ones are. Now write in the form of square. In the factor of 132, see we are in 2 square. We don't have pair of 3 and 11, so write as it is. 3 और 11 as it is रखो. ठीक है, क्लियर? तो मैंने 132 के सारे फैक्टर ये लिख डाले. 132 हुए. अब 10 की बारी. वो तो ओरली कर सकते हैं ना. 11 के फैक्टर 2 5 10, तो 2 5 10, ये 10 के फैक्टर हुए 110. उसका फैक्टराइजेशन कर डाले अपने. 2 5 10, 5 5 11 11 1. सो 2 5 11. यहां पर कोई पेयर नहीं मिल रही थी एज इट इज. देखो अगर फैक्टर में अगर पेयर बन जाती है ना, जैसे ये बन गई थी, सीधा स्क्वायर में लिखने का. नहीं बनती तो एज इट इज लिखो. 12 के फैक्टर फाइंड आउट करो. 2 6 2 3 3 1. ओके, सो हियर पेयर इज फॉर्म 2 स्क्वायर, और ये नहीं बनता एज इट इज. अब बाकी जितने नंबर बचे सबकी पेयर बनाओ. जिसकी बन गई उसका प्रॉब्लम नहीं है, जिसकी नहीं बनी उसके बना देखो. ये अंडरलाइन करते जाओ ताकि प्रॉब्लम ना हो. 2 ये तो पेयर के फॉर्म में, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये 3 ये रहा, ये रहा. ठीक है, 2 टाइम 3 है तो 3 स्क्वायर. 11 भी यहां पर 2 टाइम 11 स्क्वायर. ठीक है, 2 2 टाइम 2 स्क्वायर. 5 2 टाइम 5 स्क्वायर, और ये तो ऑलरेडी पेयर में ही है 2 स्क्वायर. सारे नंबर लिख डाले हमने और सारे नंबर स्क्वायर के फॉर्म में आ गए. ठीक, अब सारे के सारे नंबर स्क्वायर के फॉर्म में, तो ये स्क्वायर है रूट को कैंसिल कर देगा. जब भी नंबर बाहर आता है रूट के तो स्क्वायर कैंसिल हो जाता है. सो दिस ऑल स्क्वायर गोइंग टू बी कैंसिल बाय दिस रूट. सो वील हैव 2 into 3 into 11 into 2 into 5 into 2. If I multiply these all, I will get, देखो थोड़ा दिमाग लगाएगा, मल्टीप्लिकेशन करो. 5 2 10. ओके, 10 11 10. अच्छा, तो 10 2 20. 20 into 11 220. 220 3 660. 662 1320. So 1320, it will be our area. So area of triangle is equal to 1320 meter. Okay,
but we don't want area only, we want cost. Read question. Question is, the advertisement yield an earning of rupees 5,000 per meter square per year. A company hired on one of its wall for 3 months. अब अंडरलाइन करो 5,000 per meter square per year. कर दिया आपने अंडरलाइन 5,000 per meter square per year. ये तीनों अलग चीज है. 5,000 कॉस्ट है, पर मीटर स्क्वायर, पर का मतलब 1 होता है 1 मीटर स्क्वायर, और ईयर का मतलब 12 मंथ. ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर 1 ईयर का मतलब 12 मंथ इज इक्वल टू 5,000. तो here we are having three things: cost, month, and area, that is meter square. So same way we will write. So meter square, month, and it is cost or rent. So simple. For 1 meter square for 12 month, rent is 5,000. Don't be confused that over there 1 year is given. We know 1 year, that means 12 month. तो क्वेश्चन ऐसा है कि 1 मीटर स्क्वायर का 12 मंथ का रेंट 5,000 है. जैसे उनको एडवर्टाइजमेंट लगा ना, तो सपोज इतना 1 मीटर स्क्वायर होता है, तो उनको 1 ईयर का 5,000 रुपीज रेंट देने का. लेकिन उन्होंने थोड़ी इतना ही लिया हुआ, ये तो पूरा ट्राइंगल लिया हुआ जिसका एरिया कितना होता है 1320 मीटर स्क्वायर. तो 1320 मीटर स्क्वायर का, लेकिन वो 12 मंथ के लिए नहीं ले रहे. चेक करो कितने मंथ के लिए ले रहे हैं, 3 मंथ के लिए. 3 मंथ का रेंट कितना होगा, फिर से एक बार समझा दूं. ये एडवर्टाइजिंग होर्डिंग है, इसका सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर, अगर 1 मीटर स्क्वायर आप यूज करते हो 1 ईयर के लिए, तो आपको 5,000 पे करना पड़ेगा. सारे जितने आप फ्लाईओवर देखते हो, जितने ब्रिजेस देखते हो जिसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट होर्डिंग्स होते हैं, सबको पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को. पर मीटर स्क्वायर उसका प्राइस होता है. तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर उसका प्राइस 1 साल का 5,000 है. और ये कंपनी तो इतना बड़ा ट्राइंगल के शेप में होर्डिंग लगा रही है, तो ट्राइंगल का एरिया 1320 मीटर स्क्वायर है. लेकिन वो कंपनी 1 साल की नहीं रख रही है, सिर्फ 3 मंथ के लिए रख रही है. तो 1320 मीटर स्क्वायर का 3 मंथ के लिए रेंट कितना होगा. सिंपल, ये जितने भी 2 आते हैं उसका रेसिप्रोकल करेंगे, ये हमें मालूम है. 1320 करो, 13201 का रेसिप्रोकल तो बाय 1, 1203 का रेसिप्रोकल 3/12. सिर्फ यहाँ रेसिप्रोकल नहीं होगा, जो फाइंड करना है उसका रेसिप्रोकल नहीं होता है 5,000. ठीक है, क्लियर. लेट अस सॉल्व. 3 4 जा 12, इसको रिड्यूस करो. 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 3 जा 12 0. So 330 into 5 will get 16,500. How much will get? 16,000. ये 30 तो लगा नहीं, भूल गए अपने. फोर जीरोज आएंगे. 16,50,000. हाउ मच? 16,50,000. यानी रेंट इक्वल टू 16,50,000. यानी इतना ट्राइंगल के शेप में कंपनी 3 मंथ के लिए अगर वो वॉल यूज करती है तो उसको गवर्नमेंट को 16,50,000 देना पड़ेगा. बहुत ज्यादा हो गया ना. गो थ्रू इट. इजी है, देखो मैं फिर से एक बार समझा दूं. फ्लाईओवर एंड ब्रिज होता है, उसके ऊपर ट्राइंगल के शेप में कंपनी का एडवर्टाइजिंग होर्डिंग है जिसका हमें रेंट फाइंड करना है. ठीक है, तो उसके मेजरमेंट दिए हमें. मानो ट्राइंगल के साइड को एबीसी बोला जाता है, हमें से भी ये 3 मेजरमेंट दिए. तो पहला वाला ए, दूसरा बी, तीसरा सी. टू अप्लाई हेरोन्स फॉर्मूला विल रिक्वायर्ड एस, सो आई हैव फाउंड इट आउट. अप्लाई हेरोन्स एस, एस माइनस ए, बी एस माइनस बी, एस माइनस सी, सब्स्टिट्यूट वैल्यूज. ओके, now factorize. 132 को factorize किया तो I will get pair of 2, 2 square, 3 and 11 as it is. Factor of 10, 2 5 are 110, 2 into 5 into 11 and 12 2 square into 3. Now make a pair of two numbers. 2 square, ये सारी pair बना देने की.
अब जितने स्क्वायर बनते, जितनी पेयर बनती है वो बाहर आएगा, जितने पेयर नहीं बनते वो अंदर रहेगा रूट के. बट हियर वी आर गेटिंग पेयर ऑफ ऑल द नंबर, सो ऑल नंबर विल बी आउटसाइड, सो एरिया बिकम 1320 मीटर स्क्वायर. फिर ये तो मैंने आपको समझा दिया. ओके, गो थ्रू इट. Let us end this lecture over here. Bye. Have a safe day.